Okay, you can start. Hello. Good morning, everyone present. I'm Assistant Professor Dhwani Prambat from EC Department, the coordinator of this webinar. With a lots of excitement and the gratefulness, we welcome Ms. Paranita Hajra, ma'am, for the webinar of Art of Cracking Interviews. I am sure students would find the useful and may gain a lot of valuable lessons from the webinar. Ms. Paranita Hajra is the assistant professor in JECRC University, Jaipur. She is the gold medalist in the MTech and BTech in computer science. She is a owner of the YouTube channel CSC Concept with Paranita, which is having the more than 20,000 subscriber and more than 30,000 viewers. So she is delivered the expert talks on the various college and the university. She is a career accelerator coach, educator, and the mentor. She has cleared GATE 3 times and she has achieved 99.4 percentile in UGC NEET. She has also worked as a software developer in TCS for 5.5 years, and she has also worked as a research scholar in ISRO. So now may I request Ms. Paranita Hajra ma'am to start the webinar. Thank you. Thank you, Dhwani ma'am, for the wonderful introduction. Hello, everyone. I am Parinita Hajra. So, as explained by ma'am, today we are going to see some tips and tricks on how to crack interviews. So, as you must be knowing, this webinar is all about the art of cracking interviews. Yes, you heard it right. Cracking interviews is really an art that many people cannot master. सो इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीजें तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, बट प्रिपरेशन, द टेक्निकल प्रिपरेशन इज नॉट इनफ. दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, टेक्निकली जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही. हमने मोस्ट प्रॉब्ली यू हैव डन योर बैचलर्स, 3 साल 4 साल की पढ़ाई का प्रिपरेशन लेके हम लोग जाते हैं इंटरव्यू पे, राइट? बट वाइल गोइंग टू द इंटरव्यू, only knowing the technical facts and figures are not enough in case of any interview, right? So there are certain other things that we should keep in mind always before going to any interview. So पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए एक्चुअली कि why I am here to give you these tips and tricks. Why am I the right person to do that? So let me tell you first, like till date I have given many interviews. I have in fact taken many interviews of the students. मैंने TCS में काम किया है. You must be knowing TCS is one of the top IT MNCs of our country, right? तो TCS में interview process कैसे होता है? I have worked there for long 5.5 years. So I have seen many candidates appearing there for the interview. I have worked in the public, one of the biggest public organizations of India. I was the research scholar in ISRO. तो ISRO का भी इंटरव्यू मैंने फेस किया है. वहां पे इंटरव्यूज कैसे होते हैं? करंटली आई एम इन द टीचिंग फील्ड. टीचिंग फील्ड में इंटरव्यूज कैसे होते हैं, उसके लिए कैसी तरह की तैयारी करनी पड़ती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द करंट यूनिवर्सिटी दैट आई एम इन, हियर आई एम TPO, that is training and placement officer. तो यहाँ पे भी हर रोज हम लोग we are preparing hundreds and thousands of students on how to give interview. There are hundred of the students who are giving interviews every single day. तो वो लोग इंटरव्यू कैसे देते हैं, वो लोग प्रिपरेशन में क्या क्या गलती करते हैं, इन चीजों के वजह से कंपनी में उनका हायरिंग नहीं हो पाता. आई हैव सीन मैनी फेलियर्स आउट देयर, आई हैव सीन मैनी सक्सेस स्टोरीज. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के हेल्प से आई एम प्रिटी श्योर दैट आई कैन टेल यू द डिफरेंसेस बिटवीन how to get success and how to get failure in any interview. तो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्राइवेट फर्म्स में मैंने देखा है, पब्लिक फर्म में देखा है, आईटी में देखा है, टीचिंग में देखा है. अलग अलग फर्म्स के लिए एज आई टोल्ड कि टेक्निकल चीजें जो आपको आनी चाहिए वो तो है, देयर इज नो अल्टरनेट फॉर दैट. बट उसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड बी टेकिंग केयर इन माइंड. टेक्निकल चीजों के अलावा बहुत सारे गेस्टर्स, पोस्टर्स, एटिकेट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको इंटरव्यू में हायर करवा सकते हैं या रिजेक्ट करवा सकते हैं, राइट? तो वो सारे पॉइंट्स, हियर आई हैव collected all those points through my experiences
and today I'm going to share all those points with you, ताकि आगे जाके आप कोई भी इंटरव्यू अगर फेस करते हैं तो लाइक हर चीज अपनी गलती से सीखना जरूरी नहीं होता, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने जो चीजें अपने एक्सपीरियंस से सीखी, अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से सीखे, अपने कलीग्स एक्सपीरियंसेस से सीखे, वो सारी चीजें यहाँ पे कलेक्ट करके आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, ताकि इन चीजों से आप ऑलरेडी बेटर प्रिपेयर रहे एंड यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर अपकमिंग इंटरव्यूज. Fine. So with this saying this, today I'm going to start sharing a presentation where we have collected all the important points of what to do, what not to do, all the do's and don'ts of the interviews. Whether you are preparing for any, let's say, if you want to do masters, right? सिर्फ जॉब के लिए ही इंटरव्यूज नहीं होते. लेट मी टेल यू, अगर आपको मास्टर्स करना है, एमटेक, एमएस, एमबीए, तो मोस्टली आपको पता होगा जितने भी बड़े कॉलेजेस है आजकल मास्टर्स या एमबीए वगैरह के लिए पहले दे आर टेकिंग योर इंटरव्यू. इफ योर इंटरव्यूज आर लाइक, इफ your interview is satisfied enough, your performance is satisfied enough, तो ही आगे जाके वो आपको एडमिशन देते हैं. ठीक है, तो आजकल एडमिशंस के लिए, जॉब के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, काफी सारी चीजों के लिए हमको इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ती है. So if you are going to prepare for any of such interviews, I am sure enough that today's this 1 hour of webinar is definitely going to be helpful for you for your better preparation. Okay, so without discussing any further things, let me quickly share my screen. Let me know once you're able to see the screen. My screen is visible, right? Yes. Okay, okay. Fine. So we are going to see, as you all know, we are going to learn here the art of cracking any interview efficiently. So as I already told that this is actually an art, not everyone knows about it. इसका कोई लाइक रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है कि किसी ने हमको फॉर्मूला बता दिया और वो फॉर्मूले में हम वैल्यूज डाल के आंसर ला देंगे. इतना इजी होता तो हर कोई इंटरव्यूज क्रैक करता है, राइट? So it is not that easy. It is an art. There are certain things that you should be keeping in mind while going for an interview. So let's go through all those points one by one so that you will get a better idea. You are going to be more ready to grab your dream jobs after this session. So this is something I can ensure that if you attentively attend this whole session of 1 hour, I'm pretty sure you're going to be more ready to grab your dream jobs, whatever job you're desiring for. Believe me, you are capable of getting any job that you wish for. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि they are not self motivated. मतलब don't, let me tell you one thing जो मैं हर स्टूडेंट को बोलना चाहूंगी, don't self reject yourself, don't do it. काफी सारे स्टूडेंट्स को जब फॉर एग्जांपल कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं उनको लिंक भेजती हूँ कि ठीक है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छा जॉब नोटिफिकेशन आया है, अप्लाई फॉर इट, तो पहले ही उनका स्टेटमेंट आता है मैम इसमें तो हम सिलेक्ट ही नहीं होने वाले, ये लोग तो आईआईटीज एनआईटीज को ही सिलेक्ट करते हैं, हमको थोड़ी करेंगे. तो वो उनको डिसाइड करने दो, आप खुद खुद को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? अंडरस्टूड? सो keep this confident that you are capable of getting any job that you wish for. कोई टैग की जरूरत नहीं होती, कोई बड़े नाम की जरूरत नहीं होती. ठीक है, अगर ऐसा कोई टैग आपके पास है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट, वो अच्छी बात है. बट अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टैग के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी. बिकॉज कोई भी अगर आपको जॉब देता है तो बिलीव मी, वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट दे विश फॉर इज स्किल. तो अगर आपके पास एटिकेट्स है, मैनर्स है, स्किल्स है, पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्न एंड ग्रो, अगर ये चीजें आपके पास है तो यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग हायर्ड एनीवेयर. डोंट सेल्फ रिजेक्ट, डोंट सेल्फ डाउट. दिस इज वन ऑफ द की एडवाइसेस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू. ठीक है? So have this ever happened with you, that have you ever started sweating before interviews? अगर कोई भी इंटरव्यू हम अपियर करने जा रहे हैं तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि इंटरव्यू के पहले यू स्टार्टेड स्वेटिंग? अगर इंटरव्यूज आपने अभी तक फेस नहीं किए तो लेट्स से वाइवाज, आप लोगों के जो एग्जाम के वाइवाज होते हैं वो वाइवाज आर आल्सो क्वाइट सिमिलर टू द इंटरव्यूज, राइट? वहां पे भी हमारे क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं, हमको पैनल के सामने, फैकल्टीज के सामने बैठ के आंसर करना पड़ता है. तो कोई भी
प्रैक्टिकल्स के पहले, वाइवास से पहले, इंटरव्यूज के पहले, क्या आपने भी ये फेस किया है कि यू स्टार्ट स्वेटिंग, यू स्टार्ट फीलिंग नर्वस, योर हैंड्स स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, हैव योर माइंड गॉन ब्लैंक as soon as the interviewer asks any questions, right? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन की क्या ये चीजें आपके साथ होती है? बहुत नर्वस हो जाना, हाथ ठंडे हो जाना, स्वेटिंग होना, सारी चीजें पढ़ी थी बट अचानक से भूल गए। वाइवास में काफी बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स एक भी, अगर आपको बैक टू बैक 4 5 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो भी आप एक भी आंसर ही नहीं कर पाते। इट्स लाइक मैम पढ़ा हुआ तो था सब कुछ बट अभी याद नहीं आ रहा, योर माइंड गोज ब्लैंक, राइट? आई एम प्रिटी श्योर आप सब ने ये चीजें कभी ना कभी एक्सपीरियंस की ही होगी, इधर इंटरव्यूज में या फिर अगर आपने अभी तक इंटरव्यूज फेस नहीं किए तो वाइवा वगैरह में, बिकॉज ये चीज काफी नॉर्मल है। बिकॉज अचानक से कोई स्ट्रेंजर हमारे सामने बैठ जाता है, हमको क्वेश्चंस करता है, हमको उसका आंसर देना पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सामने आते हैं, तो ये चीजें होना इज क्वाइट नॉर्मल। हाथ ठंडे हो जाते हैं, चीजें पड़ी हुई थी, चीजें पता है तो भी उसको बोल नहीं पाते, माइंड में वो क्लिक ही नहीं होता, राइट? आई एम प्रिटी श्योर ये सारी चीजें किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी हुई ही होगी। बट डोंट वरी, अगर ऐसा आपके साथ हुआ भी है तो यू आर नॉट अलोन। 90% people face some or the other fears or nervousness before interviews. So guys, believe me, this is quite normal. ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता या आप कैपेबल इनफ नहीं हो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये थोड़ा सा डर लगना, नर्वसनेस होना, चीजें भूल जाना, माइंड ब्लैंक हो जाना, ये कहीं ना कहीं इज क्वाइट नॉर्मल विथ एवरी ह्यूमन बीइंग। बट ये कैसे जाता है? इट कम्स विद द प्रैक्टिस। ठीक है? जैसे आज का सेशन आप अगर अटेंड कर रहे हो तो इस तरीके से आप सेशंस अटेंड करो, आपको चीजें ज्यादा जानने को मिलेगी। जो करियर के लिए कोच करते हैं, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, आप उनके साथ बैठो, उनके साथ चीजें डिस्कस करो, आपके जो फियर्स है उसको ओवरकम करो। ठीक है? इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज आप प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप ये वाली चीजें करेंगे उतना ज्यादा धीरे धीरे ये जो डर है, नर्वसनेस है, वो आपके अंदर से जाएगा। So this is quite normal to experience fear or nervousness before the interviews. But काफी सारी चीजें अब हम आगे देखने वाले हैं कि किसके हेल्प से ये डर और नर्वसनेस आप दूर कर सकते हो और अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड बना सकते हो। ठीक है? So before going to the tips and tricks, I would like to discuss some major misconceptions about clearing interviews. Like, because as I told, if I tell about my recent experiences, I am the training and placement officer of students. ठीक है? तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि जब वो इंटरव्यू देने जाता है ना, काफी सारी चीजें स्टूडेंट्स के माइंड में मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि वैसे जो भी मिसकंसेप्शंस है आपके माइंड में, पहले वो सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो, क्योंकि जब तक आप वो मिसकंसेप्शंस या मिथ्स के अंदर रहेंगे तब तक यू कैन नॉट परफॉर्म वेल। So let me tell you some of the misconceptions about clearing interviews that I have seen in many people. बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिसकंसेप्शंस होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। So misconception number 1 is always keep your answers short. I am pretty sure आपको भी शायद किसी फैकल्टीज ने, किसी रिलेटिव्स ने, किसी फ्रेंड्स ने कभी ना कभी ये सजेशन दिया होगा कि ऑलवेज कीप योर आंसर शॉर्ट, फटाफट शॉर्ट में आंसर दो और खत्म करो। बट लेट मी टेल यू, दिस इज अ मिसकंसेप्शन, दिस इज नॉट ट्रू। अगर कोई भी इंटरव्यूअर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इंटरव्यू लेने बैठी हूँ, अगर मैंने कोई डिटेल्ड सिचुएशनल क्वेश्चन किया है जो सामने बैठा है उसको, कैंडिडेट को, तो बिलीव मी, आई एम एक्सपेक्टिंग इक्वली एक्सप्लेनेटरी आंसर फ्रॉम द कैंडिडेट। अगर मैं कंटिन्यूस क्वेश्चन अच्छे से पूछे जा रही हूँ, डिटेल क्वेश्चन पूछे जा रही हूँ और सामने वाला बस मेरे को यस, नो, नॉट रियली, सिर्फ उतना ही आंसर दे, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। सो दिस इज अ मिसकंसेप्शन दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप योर आंसर शॉर्ट। इट इज नॉट ट्रू। आपको आपके आंसर्स शॉर्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जल्दी में नहीं है हम लोग। अगर इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेने आया है
तो उसको आपका पूरा माइंडसेट सुनना है, उसको आपका पूरा डिटेल्ड आंसर सुनना है, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट द टॉपिक, एक्सप्लेन योर आंसर्स इन डिटेल। कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर आपको पूछा गया है तो आपको पहले बोलना है कि हाँ सर, इसका आंसर मेरे हिसाब से ये होगा। स्टेट द रीजन ऑल्सो, कि रीजन बीइंग कि ये चीजें ऐसे होती है, उसके हिसाब से ये होता है, इसलिए मैंने जो बोला है मेरा आंसर इस तरीके से जस्टिफाई मैं कर रहा हूँ। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो दिस इज द फर्स्ट मिसकंसेप्शन, दैट ऑलवेज कीप योर आंसर शॉर्ट, डोंट डू इट। जब तक आपको चीजें आती है तब तक आपको अच्छे से, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना कि एक ही क्वेश्चन का आंसर हम आधे घंटे तक दिए जा रहे हैं, उतना ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना। बट यू हैव टू गिव अ कंसाइज, डिटेल्ड, प्रॉपर आंसर, ठीक है। एक दो वर्ड में यस नो नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी पूछा जाए तो आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके, जस्टिफाई करके आंसर देना है। so this is the first thing I want all of you to keep in mind, ठीक है। Because as I told, how would you feel if you ask someone a lengthy question expecting a similarly detailed answer only to get yes, I think so, no, I don't think that as your answers? Obviously, we won't like it, right? अगर हमने डिटेल में कुछ पूछा है तो हम चाहते हैं सामने जो कैंडिडेट है वो भी डिटेल में अपना जो भी थिंकिंग है उस पर वो चीजें बताए। इट्स ओके टू ओपन अप एंड टॉक अबाउट द कंपनी। मतलब देखिए, आंसर्स हर तरीके से हो सकता है। अगर वो टेक्निकल आंसर है तो भी, अगर वो रेगुलर कोई जनरल क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कंपनी के बारे में, पोस्ट के बारे में, आपके काम के बारे में, तो भी आपको जितना हो सके उतना डिटेल में अच्छे से समझा के आंसर देना है, ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट। मिसकंसेप्शन नंबर 2 इज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन गेट्स द जॉब। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, हमारा तो इसमें नहीं होने वाला, इसमें तो जो टॉपर है उसका ही होगा, इसमें तो जो आईआईटीएंस एनआईटीएंस है उन्हीं का होगा। दिस इज नॉट ट्रू। द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन गेट्स द जॉब, ये जो थिंकिंग है या ये जो मिसकंसेप्शन है आपके माइंड में, उसको दूर करना होगा आपको। While being the most qualified gives the applicants a head start, the job interview is more like a date. Yes, you heard it right. कि जॉब इंटरव्यू को भी आप एक डेट की तरह ले सकते हैं। You might not be the most qualified, but if there is a chemistry, if there is a good equation between you and the interviewer, you are most likely getting a chance to be winning candidate for the job. ठीक है। आपको बस क्या करना है, जितना भी टाइम आपके पास है, लेट्स से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आपका जब तक इंटरव्यू चल रहा है तब तक आपको इंटरव्यूअर के साथ एक अच्छा इक्वेशन बनाना है। इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, वो क्या सुनना या जानना चाहता है, वो आपको उसी सेकंड में समझना है और अकॉर्डिंगली आंसर देना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉपर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद इंटरव्यू लेने बैठी हूँ, जैसे आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। जब मैं इंटरव्यू लेने बैठती हूँ तो ठीक है, पहला जब इंट्रोडक्शन होता है तब हम रिपोर्ट कार्ड्स देखते हैं, उनके रिजल्ट, मतलब 12th के या बैचलर्स के रिजल्ट पूछते जरूर है। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने बोला कि वो उसकी क्लास का टॉपर है और उसके 9.5 सीजीपी है, तो ऑब्वियसली वो एक स्टेटमेंट थोड़ा सा इंप्रेसिव होता है कि ओके यू आर द टॉपर, दैट्स गुड, ठीक है। बट उसके बाद मेरा मेन एवोल्यूशन कब होगा, जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। उसने चलो ये तो बता दिया कि उसके 9.5 सीजीपी है, वो टॉपर है, बट अगर मैं जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसका मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर ही नहीं मिल रहा, तो उसके 9.5 सीजीपीए का बिलीव में मुझे कुछ नहीं करना। यू आर गेटिंग इट। मुझे क्या देखना है कि जो चीजें मैं पूछ रही हूँ, वेदर ही और शी इज कॉन्फिडेंटली एबल टू आंसर देम और नॉट। अगर वो 9.5 या 9.9 सीजीपीए भी लाता है, बट अगर वो मेरे क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्टरीली नहीं दे पाता, तो आई वोंट सिलेक्ट हिम। वहीं पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल 7 सीजीपीए ला रहे हो, ठीक है, यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, बट मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ सारे क्वेश्चंस को आप सुन रहे हो, समझ रहे हो और बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर्स दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आई वुड सिलेक्ट यू ओवर दैट टॉपर, ठीक है। ये चीज आपको समझनी होगी, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो टॉपर है, जो मोस्ट क्वालिफाइड है, जिसके साथ, जिसके पास ज्यादा डिग्रीज है, वो हमेशा जॉब के लिए कैपेबल नहीं होता, ठीक है। डिग्री इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज बट like degree is important, yes, everywhere, but degree is not the most important thing. The most important thing is how you perform in an interview.
इसीलिए हम आज ये वेबिनार कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास डिग्री एक दो कम ज्यादा हो, परसेंटेज थोड़े कम ज्यादा हो, बट अगर आपको पता है इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करना है, तो बिलीव मी यू विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, so this is the misconception number 2. Now misconception number 3 is looks don't matter, but looks do matter in interviews. But in which sense? Let us see. Recruiters want the candidates who look fresh, confident, energetic and enthusiastic. ठीक है, ये देखो, ये हर तरह से ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप लोगों का वेबिनार ले रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? अगर मैं खुद एनर्जेटिक नहीं हूँ, मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर मैं आप लोगों को ऐसे, अगर मैंने वेबिनार ऐसे स्टार्ट किया होता कि चलो थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, सुनना हो तो सुन लो, नहीं सुनना हो तो कोई बात नहीं, अगर मैंने ऐसे कुछ स्टार्ट किया होता, तो क्या आप लोग मुझे सुनते इतना ध्यान से? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, राइट? सो देयर शुड बी योर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्टिंग देयर, राइट? when you will be listening to me carefully, when you will feel that I am confident enough on whatever I am saying, अगर मुझे खुद को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप लोग कैसे मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, राइट? सिमिलरली द सेम थिंग अप्लाइज इन द इंटरव्यू। अगर आपको खुद को आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इंटरव्यूअर कैसे आप में कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि इसको मैं हायर कर लूं और ये मेरे कंपनी में अच्छे से काम करेगा? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस आपको खुद को खुद में दिखाना होगा। ये इन दैट केस आई एम टेलिंग दैट योर लुक्स डू मैटर। यू शुड लुक कॉन्फिडेंट, यू शुड लुक फ्रेश, यू शुड लुक एंथुसियास्टिक। आप अभी इंटरव्यू देने आए हो, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होना चाहते हो, आप उस जॉब प्रोफाइल में सिलेक्ट होना चाहते हो, उस कंपनी में काम करना चाहते हो, वो एंथुसियाज्म आप में दिखना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, so looks do matter in the sense that you should look enthusiastic, confident, energetic. otherwise अगर आप ही energetic नहीं होंगे, आप ही confident नहीं होंगे, तो सामने वाले भी आप पे confidence नहीं दिखा पाएंगे, आपको hire नहीं कर पाएंगे। This is a very simple formula that you should be understanding. ठीक है, you don't have to be Prince Charming, when we say that looks do matter, उसका मतलब सज धज के जाना है, सबसे महंगे कपड़े पहन के जाने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के जाना है, वो नहीं है। ठीक है, you should be well groomed, but most importantly you should be confident enough. That is the most important thing in an interview. Fine. So here we have seen 3 misconceptions that students should not keep in mind. They should know that what is the real scenario. Fine. Now one of the most important things we are going to see, that is 3 secrets to crack any interview effortlessly. So no matter for which interview you are preparing, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप कोई IAS या कोई सिविल सर्विसेज की इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट IT फर्म की तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचिंग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई मास्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, no matter for which kind of interviews you are preparing for, but these are the 3 secrets. They are going to help you to crack any such interviews effortlessly. ठीक है, no matter आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल जो तैयारी है वो तो आपको करनी है, ठीक है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उसकी तो आपको तैयारी करनी ही है, जैसे मैंने पहले ही बताया, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। बट क्या होता है ना, बहुत बार, जैसे अभी स्टूडेंट्स का भी, एज आई टोल्ड दैट आई एम द प्लेसमेंट ऑफिसर, सो आई एम सीइंग दैट काफी सारे स्टूडेंट्स की अभी प्लेसमेंट्स इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं, तो हमने देखा हुआ है बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, जिनकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम में 8 CGPA 9 CGPA लेके आते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन द कंपनीज। रीजन क्या है कि टेक्निकली तो वो बहुत अच्छे है, ठीक है, उनको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है, वो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, बट जब तक आपको जो चीजें आती है वो आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूअर को कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे हो टेक्निकली? आर यू गेटिंग इट? आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है, आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है, बट अगर आप वो सारे स्किल्स को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ? उनको कैसे पता चलेगा यू आर एलिजिबल इनफ, राइट? बिकॉज दे आर गोइंग टू जज यू। सी, इसको आप प्लस पॉइंट बोलो, माइनस पॉइंट बोलो, जो भी है, बट द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू जज यू इन द फर्स्ट 3 to 4 minutes।
अगर वो पहले के 3-4 मिनट में उसको लग गया कि ये बंदा लेने लायक है तो वो अच्छे से इंटरव्यू लेगा। अगर वहीं पे उसको लग गया कि नहीं, मतलब जो बात, मतलब जो मैं ढूंढ रहा हूँ वैसी बात ही नहीं है इसमें, तो वहीं पे वो आपको रिजेक्ट कर देगा, राइट। वो तीन, उनके पास उतना टाइम ही नहीं है कि 3-4 मिनट से ज्यादा आपको जज करता हुआ वो टाइम लगाए, राइट। वो अगर 3-4 मिनट में ही दिख गया दैट यू आर वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक वेल, यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, तो वहीं पे वो इंटरव्यू बंद कर देगा। अगर आपने कितना भी अच्छा टेक्निकल स्किल्स है, आपको अगर वो दिखाने का ही मौका नहीं मिल रहा, तो आप कैसे प्रूव करोगे, राइट। सो टेक्निकल स्किल्स तो आपको करनी है, उसके लिए तो कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। बट द थिंग इज, like, you need to prove yourself as soon as possible with your communication skills, with your gestures, with your posters. So as I told, technical skills you need to have there, there is no alternative, but certain other things that you should also be knowing, let's see them one by one. Fine. So I do call them three secrets to crack any interview effortlessly. So let's see which are the three secrets. Secret number one, the first secret that I would like to share with you is, don't pretend, be genuine. No matter which interview you are preparing for, the most important thing in any interview is not to pretend and being genuine. Because I have seen in many interviews that people try to pretend. मतलब उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो भी फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलने का ट्राई करेंगे, इंग्लिश का एक्सेंट लाइक यूएसए एक्सेंट की तरह बात करेंगे। इट्स लाइक, इफ यू आर वेरी गुड एट इट देन इट्स गुड, इट्स अनडाउटेडली गुड, बट डोंट ट्राई टू प्रिटेंड व्हाट यू आर नॉट, कि ये चीज आपको आती ही नहीं है तो भी आप वहां पे दिखाने का ट्राई कर रहे हो। सी, जो भी आप में है ना वो ऑटोमेटिकली दिख जाता है, और जो आप दिखाने का ट्राई करते हो ना वो भी दिख जाता है दैट यू आर प्रिटेंडिंग। एंड बिलीव मी, नो वन लाइक्स pretension in such cases. ठीक है, if I want to take you for my company, if I am taking your interview, I want to see the real you, actually who you are, what you know, how do you speak. I want to see the genuine you. I don't want to see someone else कि पहले के 10 मिनट में आप कुछ और प्रिटेंड कर रहे हो फिर आप कुछ और हो, वहां पे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा ना। आई वोंट लाइक टू हायर एनीवन लाइक दैट, right? So one of the most important secrets or important points that you should be knowing is, don't pretend, be genuine, be genuinely true to who you are. People will tell you to be more smart, intelligent, genius, etc. But I would recommend you to be genuine, because बहुत ज्यादा खुद को स्मार्ट दिखाना, इंटेलिजेंट दिखाना, सी देयर आर टू थिंग्स, स्मार्ट इंटेलिजेंट आपको बनना है, बट जितने हो फिर उतना दिखाओ। डोंट प्रिटेंड टू मच, बिकॉज प्रिटेंशन स्पॉइल्स एवरीथिंग, राइट। सो बीइंग जेन्युइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यू नो व्हाट, नो वन वांट्स टू हायर एनीवन who would sound like a programmed robot. ये चीज समझो कि अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर मैं इंटरव्यू लेने आई हूँ और आपको मुझे मेरी कंपनी के लिए हायर करना है, तो मुझे ह्यूमन बींग्स चाहिए, मुझे रोबोट नहीं चाहिए कि आप कुछ रट रटा के आ गए और 5 मिनट आप मेरे को लाइन टू लाइन बुक का कोई लाइन टू लाइन कुछ बोल रहे हो। ये सब मैंने देखा है कि बहुत सारे जो एचआर क्वेश्चंस भी होते हैं ना, लेट्स से व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, उसमें काफी सारे बच्चे चीजें रट के जाते हैं कि ओके दिस आर माय स्ट्रेंथ, दिस इज, मतलब वो जो आप रट के आ रहे हो और वर्ड टू वर्ड बोल रहे हो ना, वो चीज दिख जाती है। एंड नो वन वांट्स टू हायर अ प्रोग्राम्ड रोबोट। रोबोट को अगर हायर करना है तो अभी तो रोबोटिक्स का जमाना है, डायरेक्ट रोबोट ही बना लेंगे, राइट। तो वो रोबोट हायर करने नहीं आ रहे, वो एक नॉर्मल जेन्युइन ह्यूमन बीइंग को हायर करने आ रहे हैं। तो यू शुड बिहेव जेन्युइनली एंड बिहेव लाइक अ रियल पर्सन। You have to practice how to be more genuine. The purpose of practicing is to reassure yourself that you already know the answers, you just need to frame it well. Once you have practiced, you will find that you will automatically start giving impressive answers. Let them flow naturally. तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन के आंसर्स ऐसा लगना चाहिए कि ऑन द स्पॉट आप खुद के मन से अच्छे से बना के फ्रेम करके बता रहे हो, because that will create a different kind of impact on the interviewer's mind. Fine. So this is very important. Now let's see the secret number 2, that is,
don't get ready, stay ready. So it's like interviewer is not like giving or cracking interviews is not a single night game. कि जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में आपको आदत है ना कि कल सुबह एग्जाम है तो आज रात को बुक लेके बैठो, आज रात को सिलेबस देखो क्या है, पास तो हो ही जाएंगे। ऐसे पास नहीं होना। ऐसे कोई रिटन एग्जाम में तो भी आप पास हो सकते हो, बट इंटरव्यू में ऐसे पास होना मुश्किल है। ठीक है, इंटरव्यू डजंट वर्क लाइक दैट। You cannot get yourself ready in a single night. This is something that takes a lot of efforts, a lot of time, continuous dedicated efforts. ठीक है, so you cannot get ready, you have to stay ready. जैसे अगर आपके इंटरव्यूज लेट्स से हमको पता है जनरली कॉलेजेस में फाइनल ईयर में इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, बट एक रात पहले, 2 रात पहले, एक हफ्ते पहले अगर आप बैठोगे कि चलो कुछ कुछ चीजें हैं रट लेंगे तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको काफी एडवांस में प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस तरीके के वेबिनार सेमिनार्स अटेंड कीजिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे सुनिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, टेक्निकल चीजें, नॉन टेक्निकल चीजें लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल, काफी सारी चीजें, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक इंटरव्यू क्लियर करने के पीछे देयर इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस डेडिकेटेड एफर्ट्स। फाइन, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेम्बर। बिकॉज अगर आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो वो चीजें दिख जाती है। द स्माइल ऑन योर फेस एंड द स्पार्क इन योर आईज शुड पोर्ट्रे योर प्रिपरेशन। तो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड कि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आप लोग क्यों सुन रहे हो, बिकॉज देयर शुड बी स्पार्क इन योर आईज कि टुडे यू आर गोइंग टू deliver something very good, today you are going to give some worthy answers, some worthy points, तो वो चीजें दिखनी चाहिए। ठीक है, तो you should be prepared enough and that preparation of yours should be seen in the smile of your face and the spark in your eyes. It is very very important because अगर वो चीज दिखता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू देने आए हो, आप एंटर हो रहे हो रूम में, एंड इफ आई कैन सी दैट pure smile in your face and if I can see the spark in your eyes, believe me, वहीं से मेरा मन बनना स्टार्ट हो जाता है कि इसको हायर करना है। So this is something that is very important. Before attending interview, research about the company's background and the job role for which you are being interviewed. तो जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो तो आपको प्रिपेयर करना ही है, बट उसके अलावा प्रिपरेशन में काफी सारी दूसरी चीजें भी आती है। जैसे जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाओ। उसका जो वेबसाइट है, हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सबका आजकल वेबसाइट होता है, उनका वेबसाइट पहले अच्छे से गो थ्रू कर लो। वो कंपनी कब से बनी हुई है, वो कंपनी का काम क्या है, जनरली वो लोग किन किन डोमेन्स पे काम करते हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है वो जॉब प्रोफाइल कैसा है, उसमें काम कैसा रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको इनफ रिसर्च करके फिर जाना है। ठीक है, तो जो आपका टेक्निकल चीज है, काम का चीज है, वो तो आपको पता होनी ही चाहिए, बट उसके अलावा इंटरव्यूअर, कंपनी और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी इनफ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आपकी प्रिपरेशन में ये वाली चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, keep answers to some of the patent questions ready. You can get them here. Okay, so what do we mean by that? Keep answers of some patent questions ready. तो कोई भी आप कोई भी स्पेसिफिक कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो अगर आप पहले से सर्च करोगे ना, फॉर एग्जांपल आप टीसीएस में जा रहे हो, तो अगर आप सर्च करोगे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ टीसीएस, तो क्या होता है ना, मतलब आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी का आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जनरली ये कंपनी पूछती है। ठीक है, लाइक गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी ये वाली जो भी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, उनका अगर आप देखोगे तो आपको सबके कुछ सेट ऑफ पेटेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो जनरली पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस तरीके के थोड़े बहुत क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर कर लेना है। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल कोई एचआर का राउंड है, तो एचआर के राउंड में कुछ क्वेश्चंस फिक्स है, मतलब वो फिर आप टीचिंग के लिए जा रहे हो, आईटी के लिए जा रहे हो, सिविल के लिए जा रहे हो, कोई भी फील्ड के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एचआर में सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस आर what are your strengths, what are your weaknesses, why should we hire you, where do you see yourself after 5 years। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये जनरली कॉमन क्वेश्चंस है जो पूछे जाते ही हैं। ठीक है,
तो ऐसे जो क्वेश्चंस है जो हमको पता है कि जनरली पूछे जाएंगे, उनका आप थोड़ा सा आंसर रेडी करके जाए, बिकॉज वो होता है ना ऑन द स्पॉट आप एकदम से निकले तो कुछ कुछ चीजें हमको बेटर याद आती है, कुछ कुछ चीजें ऑन द स्पॉट याद नहीं आता। तो इन पेटेंट क्वेश्चंस का अगर आप पहले से प्रिपरेशन करोगे तो यू कैन गिव अ वेरी जस्टिफाइड, वैलिड एंड बेटर आंसर्स। ठीक है, so these things are also very important. Now the secret number 3 is how you respond is more important than what you respond. So whenever you are going for any interview, ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो आप आंसर क्या दे रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको गलत आंसर नहीं देने, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो योर आंसर शुड बी करेक्ट, कॉम्पैक्ट, कॉन्साइज। उसके अलावा हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, लेट मी टेल यू। ठीक है, एक तो आंसर्स क्या हम बता रहे हैं एंड सेकंड इज आंसर्स कैसे बता रहे हैं। फाइन, सो हाउ यू रिस्पॉन्ड इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू रिस्पॉन्ड। आपका टोन कैसा है, आपके गेस्टर्स कैसे हैं, आपका पॉज कैसा है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Like, let me tell you a recent example that one of my students had gone for an interview and he got rejected. तो मैंने फिर बाद में एचआर के साथ बात की कि आई थिंक ही इज टेक्निकली गुड, उसके मार्क्स भी अच्छे हैं, आप लोगों को जिन टेक्नोलॉजीज में चाहिए उन टेक्नोलॉजीज पे भी वो अच्छा था, तो फिर कैसे वो सिलेक्ट नहीं हुआ? आई जस्ट वांटेड टू नो। तब स्टूडेंट नहीं था, तब सिर्फ एचआर था। तो एचआर के साथ मैंने बात करने का ट्राई किया कि मेरे को बस वो थोड़ा सा आई एम इन डिलेमा कि ये सिलेक्ट कैसे नहीं हुआ, कि इससे आंसर्स नहीं दिए क्या आपको प्रॉपरली? आई 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 कैजुअली आस्क्ड हिम, he replied me, believe me, he did reply me कि नहीं, आंसर्स उसने सही से दिए, नोड, रिएक्ट, जो भी चीजें हमको चाहिए थी उसमें उसका कमांड अच्छा था, प्रोजेक्ट वगैरह भी उसने बनाया था। बट हमको ऐसा लगा कि ही इज नॉट groomed enough and he is not polite enough. So I further asked them that how exactly. तो उन्होंने वही बताया कि उसके आंसर्स में कुछ कुछ आंसर्स में उनको रूडनेस लगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले उन्होंने कुछ पूछा, उसने आंसर दिया, फिर अगर इन्होंने वापस कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया कि नहीं ये आपने ऐसे बोला, ये ऐसे कैसे होगा, ये शायद वैसे होगा, तो एट दैट पॉइंट मे बी ही रिएक्टेड क्वाइट रूडली। सिर्फ उसी रीजन की वजह से ही वाज रिजेक्टेड इन दैट इंटरव्यू। मतलब आर यू गेटिंग इट कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? उसका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा था, जो भी टेक्नोलॉजीज में वो लोग चाहते थे कंपनी वाले, वो सारे टेक्नोलॉजीज में उसका कमांड अच्छा था। वो टेक्नोलॉजीज में उसने यहाँ तक कि प्रोजेक्ट भी बनाए थे, उसने अपने प्रोजेक्ट भी दिखाए थे, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। बट जस्ट बिकॉज एट 1 or 2 पॉइंट इन द इंटरव्यू ही responded maybe quite rudely, he was rejected right there। कि कितना भी अच्छा आपका टेक्निकल स्किल हो, बट अगर आपका रिस्पॉन्स देने का वे सही नहीं है तो हम आपको हायर नहीं करेंगे। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ योर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, कि आप अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हो, आपके टेक्निकल आंसर्स अच्छे हैं, आपने बहुत सारे आंसर्स अच्छे से दिए हैं, वो तो अच्छी बात है ही, बट आंसर क्या दे रहे हो उसके साथ यू हैव टू माइंड वेरी प्रॉपरली कि आप आंसर कैसे दे रहे हो, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि what are you responding, along with it most important thing is how you are responding. Your way of responding should be very polite, should be very soft spoken and should be very well behaved, right? तो आपके वो आंसर देने के तरीके से आपका लहजा जो है, आपका बिहेवियर जो है, आपका मैनरिज्म, सब कुछ दिखना चाहिए। फाइन, सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द बोनस टिप्स। हमने अभी तक 3 जो इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस थे वो देख लिए, 3 इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स थे या सीक्रेट्स थे ऑफ क्रैकिंग एनी इंटरव्यूज वो भी देख लिए। नाउ I wanted to share these 10 important tips with you all before this webinar ends, right? Because ये जो 10 tips है, ये आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। फाइन, so what are these 10 important tips? Let us see one by one. The number 1 point is reach early to the location, either it is online or offline interview. तो guys, ये जो 10 पॉइंट्स हम देखने वाले हैं, ये probably कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखते होंगे, कुछ का नहीं रखते होंगे। They may seem minor points, but believe me, they are very major points.
इन पॉइंट्स की वजह से भी आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड हो सकता है, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज रीच अर्ली टू द लोकेशन, आइदर इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू। तो अभी लास्ट 2-3 साल से कोविड के बाद से एक्चुअली हमने देखा हुआ है कि काफी सारे इंटरव्यूज ऑनलाइन भी होने लगे हैं। तो नो मैटर आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू हैव टू रीच देयर अर्ली और एटलीस्ट ऑन टाइम, बिकॉज appearing late in any interview makes a very bad impression। जैसे आज हमारा ये वेबिनार 10 बजे से था, राइट, आप लोग ये लाइव देख रहे होंगे। तो 10 बजे के वेबिनार में अगर व्यूअर्स ने ज्वाइन कर लिया और मुझे जिसको बोलना है मैंने 10:30 को ज्वाइन किया, तो हाउ हाउ विल इट लुक, राइट, कि आधे घंटे से मैं आप लोगों को वेट करवा रही हूँ। दैट मेक्स अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन। तो आपको भी ये चीज याद रखना है कि आपको जॉब चाहिए, राइट। So in that case, you shouldn't make the interviewer wait for you. You should respect your time as well as the interviewer's time. Because if you cannot respect their time, they will not respect your values. ठीक है। तो अगर आपका वो ऑनलाइन इंटरव्यू है तो ऑनलाइन इंटरव्यू आजकल मोस्टली सॉफ्टवेयर में होता है, लाइक जूम, गूगल मीट, कहीं पे भी आपका हो सकता है। तो जो भी आपको लिंक दिया गया होगा उसमें आपको जो भी प्रॉपर इंटरव्यू का टाइम है उससे मिनिमम 10 to 15 मिनट्स पहले ज्वाइन कर लेना है। बिकॉज पहले ज्वाइन करने से एक वो भी होता है, ऑनलाइन में काफी सारी बार काफी सारे इश्यूज होते हैं। आप नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए, ऑडियो चेक कर लीजिए, वीडियो चेक कर लीजिए। आप अगर कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं, कोई आपका डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट करने वाले हैं, तो वो सब भी चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं, ठीक है। और अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में तो आपको और भी ज्यादा बैंडविड्थ लेके चलना चाहिए। बिकॉज ऑफलाइन में हो सकता है आपको जिस भी वेन्यू में पहुंचना हो, वो वेन्यू में पहुंचने के लिए देयर कैन बी मेनी हर्डल्स, राइट। कभी कभी ट्रैफिक इश्यूज हो जाते हैं, कभी कभी लाइक सिग्नल्स में वेट करना पड़ जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। अगर आप व्हीकल में जा रहे हो तो ऑब्वियसली व्हीकल इज अ मशीन, मशीन के कभी खराब होने की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जनरली मेरा व्हीकल बहुत अच्छा चलता है बट आज अचानक बिगड़ गया रास्ते में। तो ये सारे अनएक्सपेक्टेड थिंग्स भी आपको दिमाग में रख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ऑफलाइन इंटरव्यू है तो आई वुड सजेस्ट यू कि और ज्यादा टाइम आप हाथ में लेके निकलो। बिकॉज अगर आप आधे घंटे 1 घंटे पहले वेन्यू में पहुंच गए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप आधे 1 घंटे वेट कर सकते हो, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, थोड़ा कुछ आपको रिवाइज करना हो क्विकली तो वो रिवाइज कर लो, अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी आप फाइल लेके गए होंगे वो सॉर्ट आउट कर लो। तो वो चीजें आप कर सकते हो। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आप वो आधा 1 घंटे का बैंडविड्थ लेके नहीं निकले, आप यहाँ से 20 मिनट का टाइम लगता है तो मैं आधे घंटे पहले ही निकली, 5-10 मिनट का ही हाथ में लेके निकली। व्हाट इफ 10 मिनट का ट्रैफिक आ गया, व्हाट इफ 15 मिनट मुझे सिग्नल्स में वेट करना पड़ गया, व्हाट इफ रास्ते में बारिश हो गई, मुझे 15 मिनट साइड में खड़े रहना पड़ा। तो इन दोज केसेस व्हाट विल यू डू? इन दैट केसेस एक ही चीज होगी कि आप लेट पहुंचेंगे। और एज आई टोल्ड, लेट पहुंचना इज टेकन एज अ वेरी बिग माइनस पॉइंट फॉर एनी इंटरव्यू। So this is a very important point that you all should keep in mind, that you have to reach early to the location, either it is online or offline, ठीक है। अगर ऑनलाइन है तो 10-15 मिनट पहले ज्वाइन कर ले, अगर ऑफलाइन है तो हो सकता हो तो आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाइए या आधा 1 घंटा एटलीस्ट बैंडविड्थ लेके निकलिए, तो इट्स बेटर, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेस फॉर्मली and with neat and simple hairstyle. So this is a very important, that how are you, how are you appearing there? This is very important. अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो भी, अगर ऑफलाइन इंटरव्यू है तो भी आपको फॉर्मली ड्रेस करना है, ठीक है। और नीट एंड सिंपल हेयर स्टाइल करना है। हेयर स्टाइल पे भी ये स्पेसिफिकली मैंने पॉइंट इसलिए ऐड किया है बिकॉज नाउअडेज वी सी स्टूडेंट्स, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर नॉट टेकिंग दिस पॉइंट सीरियसली। कुछ भी पहन लिया, कैसे भी पहुंच गए, बाल कहीं भी जा रहा है, इट शुडंट बी लाइक दैट। यू शुड लुक वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है, विथ योर फॉर्मल अटायर। फॉर्मल अटायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल अटायर में क्या चीजें होती है, एक तो द टाइप ऑफ योर क्लोथ्स एंड ऑल्सो द कलर ऑफ योर क्लोथ्स। अगर आप इंटरव्यू देने गए हो तो कोई जैसे जो होता है बहुत ही डार्क भड़कीला कलर टाइप, यू कैन नॉट हैव दोज थिंग्स ऑन यू, ठीक है। इट शुड बी डिसेंट, like decent blue, green, or probably the light colors like white, gray, cream.
दोज कलर्स आर ओके, बट मोस्टली वैसे कलर का ही आपका अटायर होना चाहिए, ठीक है। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ द क्लोथ दैट यू आर वेयरिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो ड्रेस है सब कुछ, मतलब हेयर स्टाइल से लेके आपने ऊपर क्या पहना है, नीचे क्या पहना है, आपके शूज कैसे हैं, आपके वॉच कैसे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही फॉर्मल और डिसेंट होनी चाहिए, right? So this is something that you should be remembering thoroughly in your interviews, that your dressing sense plays a very important role right from your hairs to your shoes, ठीक है। Everything should be neat and clean and formal and should look decent on you. So this is an important point. Then the third point is greeting should be the first thing of your conversation. So this is something I think most of you will do or are doing. But again, there are certain students, certain freshers who miss this point. But ये point miss करने जैसा नहीं है. You should always keep this thing in mind, that you should, no matter what time of the day it is, but you should never miss greeting the interviewer, ठीक है। अगर ऑनलाइन भी है तो जैसे ही आपने ज्वाइन किया सबसे पहले यू शुड डू लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर द टाइम इज, यू शुड विश द इंटरव्यूअर्स। या फिर अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो जैसे ही लाइक जनरली कैसे होता है, एक केबिन होता है या मीटिंग रूम होता है, वहां पे जो पैनल है, इंटरव्यूअर्स का पैनल है, वो जनरली बैठे होते हैं पहले से, दो दो चार छह जितने भी लोग होते हैं पैनल में, वो पहले से बैठे होते हैं। और वन बाय वन जो कैंडिडेट होता है जिनको इंटरव्यू देना होता है वो वन बाय वन एंटर होते हैं। तो जैसे ही आपने एंटर हुए आप, हाँ अगेन यहाँ पे एक और पॉइंट, डायरेक्टली दरवाजा खोल के फुल स्पीड में एंटर नहीं होना है। दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट बट इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम, कि दरवाजा खोल के पहले आपको वहां पे एक लाइक 10-20 सेकंड के लिए पॉज लेना है, वेट करना है, मे आई कम इन पूछना है, फिर आपको इंटरव्यू जब बोले यस कम इन, प्लीज कम इन, तब आपको अंदर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले डोर के, अगर ऑफलाइन इंटरव्यू है तो डोर के वहां से ही आपको थोड़ा पॉज लेके मे आई कम इन पूछना है, उनसे परमिशन लेनी है, फिर आपको अंदर आना है। अंदर आने के बाद ऑब्वियसली आप जहाँ पे बैठोगे वहां पे चेयर होगी, बट अंदर आने के बाद तुरंत आपको बैठ नहीं जाना है। पहले आप मे आई कम इन पूछोगे, वो आपको परमिशन देंगे, फिर आप अंदर आओगे। अंदर आने के बाद भी जहाँ पे वो चेयर रखी होगी इंटरव्यूअर्स के सामने, वहां पे आपको कुछ सेकंड्स खड़े होना है, पॉज लेना है। दे विल आस्क यू टू प्लीज सिट डाउन, तब आपको बैठना है। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट वहां से ही आपका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का माइंडसेट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अंदर आने के लिए, चेयर में बैठने के लिए आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, यू हैव टू आस्क फॉर परमिशन, दे विल से दैट प्लीज कम इन, प्लीज सिट डाउन, तब आपको बैठना है, ठीक है। और जैसे ही आप बैठते हो, द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग इज ग्रीटिंग देम, ठीक है। whatever time of the day it is, good morning, good evening, whatever it is, so first of all you will like greet them, good morning sir, good morning ma'am, whoever they are। और उसके बाद फिर आपका इंट्रोडक्शन है जो भी है वो आप स्टार्ट करेंगे, या जो इंटरव्यूअर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। so greeting is very very important whether it is online or offline interview। then along with the technical concepts, strengthen your logical aptitude and reasoning part too। So this is again one of the very important tips that I would like to share with you, कि जो टेक्निकल चीजें हैं वो तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जिस भी फील्ड में आप पढ़ रहे हो या जिस भी फील्ड में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां की टेक्निकल चीजें तो आपको पढ़नी ही है। बट उसके अलावा दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू एडवाइस यू, कि अगर आप लोग अभी 1 सेमेस्टर बाद, 2 सेमेस्टर बाद अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, तो आपको अभी से जो नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर भी ध्यान देना है, वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जैसे आपका एप्टीट्यूड पार्ट हो गया, लॉजिकल पार्ट हो गया, रीजनिंग हो गया। एप्टीट्यूड में भी काफी सारी चीजें आती है, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड फॉर एग्जांपल, उसमें आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मिक्सचर, ये सारी चीजें आपका लाइक फ्रैक्शन एंड ऑल, सारी चीजें आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं। ये सारे जो नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये भी आपका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन डिसाइड करते हैं किसी इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये सारे चीजों पे भी आपको इक्वली ध्यान रखना है। ऑलराइट, so along with the technical concepts,
you should strengthen your logical aptitude and reasoning part too. Fine. अगर इसमें आप में से किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, you can reach out to me either on LinkedIn or Facebook or any social media. I won't mind. I can provide you some quality material or some links to prepare for aptitude and reasoning part, right? Because this is very important. आप कोई भी फील्ड के हो, आप कोई भी जॉब के लिए जा रहे हो, आजकल ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू राउंड्स में ये चीजें इंक्लूड हो गई है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है, पहला जो राउंड होता है वही आपका एप्टीट्यूड राउंड होता है, और वहीं से वो लोग एलिमिनेशन करते हैं. मतलब लेट्स से अगर 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अगर एप्टीट्यूड का टेस्ट दे रहे हैं, तो 50 या 60% वो लोग वहां से एलिमिनेट कर लेते हैं. लेट्स से 100 मार्क का एप्टीट्यूड है, तो अगर 100 में से कोई 40 नहीं ला पा रहा, 40 से नीचे के जो है उनको वो डायरेक्ट वहीं से निकाल देते हैं कि वो लोग आगे के इंटरव्यू जो स्टेप्स है या राउंड से वहां पे जा ही नहीं पाएंगे. तो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट कि अगर आपका टेक्निकल बहुत ही अच्छा है, बट स्टिल अगर आपने एप्टीट्यूड क्लियर ही नहीं किया, तो आप टेक्निकल राउंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. So that is why this aptitude rounds are very, very important. Fine. So you can feel free to reach out to me. I will definitely try to help you out with these stuffs if you are facing any issues. Okay. Then the next point is be honest and be flexible. So as I already told, in the interview, it is very important that you should be genuine and you should be honest. मतलब अगर आपको पूछा है कि आर यू एबल टू रिलोकेट, तो आपको रिलोकेट नहीं करना, तो भी आप बोल रहे हो कि हाँ देख सकता हूँ, चलेगा, तो ऐसे आंसर्स नहीं होने चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि अगर यू आर रेडी फॉर रिलोकेट, यू शुड बी सेइंग यस. एंड इफ यू आर नॉट रेडी फॉर रिलोकेटिंग, तो आपको रीजंस के साथ आप मना कर सकते हो कि आई एम वेरी सॉरी सर, but I, like for example, I'm very sorry sir, but I am having my single parent, I'm staying with my dad or my mom and I need to support them, and that is why मैं relocate नहीं हो पाऊंगा, मुझे इसी सिटी में यहीं पे रहना पड़ेगा. So that is okay, that is a valid reason at your part. ठीक है. तो जो भी आपका स्टैंड है वो बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आपको आंसर देना है. बिकॉज कोई भी अगर इंटरव्यूअर है, so he or she will value the genuinity and he or she will value that honesty with which you are answering. ठीक है. So you should be honest and flexible. Then the next point is eye contact. ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आइदर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, आई कॉन्टेक्ट आपको कंटिन्यूअस मेंटेन करना है, बिकॉज आई कॉन्टेक्ट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी. तो वो जो आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो ना इंटरव्यूअर के साथ, उससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप ऑनेस्ट हो, और लाइक सीधे से आप सही सारे जवाब दे रहे हो. बिकॉज वो बोलता है ना कि लाइक झूठ बोलते हैं ना तब नजर चुराना पड़ता है. देयर इज सम माइंडसेट लाइक दिस. तो जब भी आपको कुछ पूछा जाए, आपको नीचे देख के या यहाँ वहां देख के आंसर नहीं देना. आपको एक पोलाइट एंड काम आई कांटेक्ट मेंटेन करते रहना है इंटरव्यूअर्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफलाइन इंटरव्यू देने गए हो और वहां पे 4-5 पैनल में 4-5 इंटरव्यूअर बैठे हैं, तो आप कैसे आई कांटेक्ट कर सकते हो? आप आंसर देते हुए बारी बारी वो सबको एक बार देख सकते हो. ठीक है. कंटिन्यूसली यू कैन गिव योर आंसर्स एंड हैव अ पोलाइट आई कांटेक्ट विद ऑल, ताकि ऐसा लगे कि सबको हम अटेंशन दे रहे हैं और हम हमारा आंसर भी दे रहे हैं एट द सेम टाइम. ठीक है. सो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई कांटेक्ट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी. देन present an extraordinary CV, your half job can be fixed there. So guys, ये तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, बट लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि एक अच्छा सीवी या रिज्यूमे आपका आधा काम वहीं पे फिक्स कर सकता है. अगर आपने आते ही, जैसे ही आप एंटर हुए, आपने मुझे सबसे पहले अपना रिज्यूमे पकड़ाया और वो रिज्यूमे इतना इंप्रेसिव है, उसमें इतने अच्छे से सारी चीजें दी हुई है, तो वो सीवी देख के ही मैं अपना मन बना लेती हूँ कि चलो इसको तो हायर करना ही है. Right? So CV or resume is that much important. So you have to be presenting a very good, extraordinary CV, and your half job can be fixed there. Again, आपको resume कैसे बनाना है, resume review करवाना है, ऐसे किसी भी चीज के लिए अगर हेल्प चाहिए होगी, again you can contact me. I have no issues. I will be happy to help you out. ठीक है. But जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपके पास एक अच्छा रिज्यूमे हो, एक स्टैंडर्ड सीवी हो, वो बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है. मेंटेन अ कैजुअल बट कंपोज्ड बॉडी पोस्चर. तो गाइस, योर गेस्टर्स एंड पोस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
आपका आई कांटेक्ट कैसे है, आप आके लाइक आपका चलना उठना बैठना, आई कांटेक्ट, हैंड गेस्टर्स, योर स्माइल ऑन योर फेस, ये सारी चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. सो यू शुड मेंटेन अ कैजुअल बट कंपोज्ड बॉडी पोस्चर. जैसे आप अंदर कैसे एंटर हुए, आप चेयर पे कैसे बैठे हो, आपके पाँव कैसे हैं, आपके हाथ कैसे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. तो आपका बॉडी पोस्चर मतलब लाइक एकदम ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ रट के जाओ कि हाथ मेरे को ऐसे ही रखने हैं, पाँव मेरे को ऐसे ही रखने हैं, ऐसे नहीं है. बिकॉज उससे बहुत वो स्टिफ दिखेगा. तो वो स्टिफ या ऐसे कुछ रट के आए हो, वैसे रोबोट की तरह बिहेव कर रहे हो, वैसे नहीं लगना चाहिए. बट यू शुड बी वेरी जेन्युइन, वेरी काम बॉडी पोस्टर्स एंड इट शुड बी डिसेंट इनफ. आपको डिसेंसी का हर स्टेप में ध्यान रखना है इंटरव्यू में. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नो व्हाट यू वांट इन अ जॉब, योर एक्सपेक्टेशंस शुड बी क्लियर इनफ. तो फॉर एवरी जॉब वी शुड बी हैविंग सम एक्सपेक्टेशन. ठीक है. मतलब एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं कि भाई हमको तो पैसे के लिए जॉब चाहिए. इट इज नॉट एक्सपेक्टेशन. वो तो है ही, वो तो हर जॉब पैसे के लिए चाहिए. मनी इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वी नो. बट अगर आप कोई भी कंपनी में कोई भी इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो, तो मनी शुड नॉट बी द ओनली रीजन. what should be the other expectations कि वहां पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहां का जॉब प्रोफाइल कैसा होगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. अगर आपको इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, तो आपके आंसर ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए या उस तरीके की कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए. ठीक है. दीज थिंग्स आर देयर. बट आपको बोलना क्या है या व्हाट शुड बी योर प्राइमरी पॉइंट्स. इट शुड बी अबाउट द जॉब प्रोफाइल, about the tools and technologies that you will be working. It should be about the work life balance that you will be getting. ठीक है. ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उस तरीके की चीजें आपको थोड़ा पहले से रिसर्च कर लेना है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होने चाहिए वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू में. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर these tips end of this webinar is to conclude on a positive note. तो जब भी आपका इंटरव्यू खत्म हो रहा है, so at the end you should always try to conclude the interview in a positive note. कि अच्छे से थैंक यू बोल के निकले, with a smile, with a handshake. These things matters a lot. मतलब इंटरव्यू खत्म हुआ, खड़े होकर निकल दिए, बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए. राइट. It shouldn't be abrupt. It should be a very polite and pleasing end. Right. कि thank you so much sir, it was very nice meeting you. I'm hoping to receive a positive response from you. लास्ट में ये 3-4 इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपके होने चाहिए. एंड विथ अ वेरी वार्म स्माइल एंड गुड बाय आपको वो रूम छोड़ना है. ठीक है. बिकॉज वो होता है ना, लास्ट इंप्रेशन ऑलवेज लास्ट इन द मेमोरी. कि आप कैसे निकले लास्ट में, वो मेमोरी इंटरव्यूअर के माइंड में छप जाता है. तो इसीलिए आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपका इंटरव्यू जब खत्म हो रहा है, इट शुड ऑलवेज कंक्लूड ऑन अ पॉजिटिव नोट. ठीक है. कि जब खत्म हो रहा है तब आप एक अच्छी मेमोरी देके, एक अच्छी मेमोरी छोड़ के वहां से निकले. तो इट शुड बी, अगेन आई एम रिपीटिंग, कैसे स्टेटमेंट्स होने चाहिए. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. इट वाज वेरी गुड interacting with you. I am hoping to hear soon with a positive response from you. Thank you so much for your time. This is something that you can see. This is something that you can say. और last में एक proper warm smile के साथ आप वहां पे थैंक यू बोल के निकल सकते हैं. So this is something very important. ठीक है. So these are some of the points that I wanted to share with you all. We have almost covered everything that I think, right? I think आपके इंटरव्यू के लिए जो भी आपके मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होने के लिए जो भी चीजें चाहिए, आपका गेस्टर्स पोस्टर्स कैसे होने चाहिए, आपका पहनावा कैसे होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, A to Z सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है. ठीक है. I hope this will definitely be helping you out for your upcoming interviews, right? See, interviews are why so important because one good interview, one good job is capable of changing your life. You need to understand that. Literally, I do mean that एक अच्छी job literally आपकी और आपके आसपास वालों की जिंदगी बदल सकती है. So you need to take the interview seriously. You need to prepare yourself. And I wish you all very best for all your upcoming interviews and for all your upcoming journey. Thank you so much. Okay, thank you so much, ma'am.
Hello everyone from attending this webinar. I hope you have learned a valuable lesson which will have useful in your future. I would like you to thank this respected speaker, Ms. Varnita Harja ma'am, for the sharing her experience, giving her valuable time, and exploring us with the knowledge of the cracking of the interview. I would like to thank all of the students for attending this informative webinar. I hope that you all find this webinar very useful and your days goes well. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.